Hi guys, this is Ritu Pava and welcome back with the topic of verb part 4. Let's revise what is verb. Doing words or action words are called verbs. In the previous videos, I have explained the linking verbs, auxiliary verbs जिनको हम helping verbs भी कहते हैं, and after that the regular verbs and the irregular verbs. Now it's the turn of the finite or the infinite verbs. Infinite verbs जिनको हम non-finite भी कहते हैं. So I'm going to explain in this video the finite or the non-finite or the infinite verb. So let's begin with this. Firstly, I'm going to take up the finite verb as you can see on your screen, finite verbs, and let's see how we use and how we recognize them. A finite verb shows agreement with the subject and is marked for the tense. All of you know that हर sentence के अंदर there is a subject और ये जो finite verbs हैं these are linked with the subject. सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ ये फाइनाइट वर्ब्स जुड़े होते हैं एंड इज़ मार्क्ड फॉर द टेंस और साथ में ही ये हमें बताते हैं टेंस के बारे में दैट द गिवन सेंटेंस इज़ ऑफ द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और द फ्यूचर टेंस. लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स लाइक आई लव परेड्स, शी लव्स परेड्स. लव्स एंड लव बोथ आर द इनफाइनाइट वर्ब्स and from them we can easily see that they are of the present tense. Third example, Pop loved parathas. यहाँ पर जो loved verb है इससे हमें पता चल रहा है that this is of the past tense. So once again, a finite verb shows agreement with the subject and is marked for the tense, means it shows tense. Let's understood this one with some more examples like the thief escaped again. In this sentence, the thief is the subject. यहाँ पर thief subject है और escaped is the finite verb और ये जो escaped finite verb है ये linked है thief के साथ. और साथ के साथ इस escaped word से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो sentence है ये past tense का है क्योंकि इसमें escape verb के साथ d लग के escape लगा हुआ है. So this shows the past tense. Next is Sarah is crying with joy. Sarah is the subject and is the finite verb और यहाँ पर जो is है वो subject Sarah के साथ जुड़ी हुई है and it is showing tense. One more example with this, my sister went to school. यहाँ पर went जो है this is the finite verb and of course my sister this is the subject और यहाँ पर जो verb है went वो subject my sister के साथ जुड़ी हुई है, linked है, agrees with the subject and second thing go की second form went लगी हुई है जिससे हमें clearly पता चल रहा है कि ये जो sentence है वो past tense का है. So once again जो finite verbs हैं वो sentence के subject के साथ जुड़े हुए होते हैं and the second thing ये हमें tense के बारे में बताते हैं कि जो sentence हमारे सामने है वो present tense का है, past tense का है या future tense का है. So let's start up with the next one, that is the non-finite verbs. And what are non-finite verbs? Non-finite verbs, these they do not show tense, नहीं बताते हमें कि जो हमारे सामने जो गिवन सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है या फ्यूचर का है, वो हमें कुछ भी नहीं बताते. In other words, you can't tell if a sentence is in the past tense, present tense or the future tense by looking at a non-finite verb. So therefore a non-finite verb is never the main verb in a sentence, क्योंकि अगर वो हमें action के बारे में नहीं बता रहे हैं तो that means जो non-finite verb है वो main verb नहीं है. So let's go through the example of cooking. हम यहाँ पर cooking की example लेंगे. Cooking lamb properly is a skill. यहाँ पर हमें पता है कि cooking word जो हम as a verb use करते हैं, but in this sentence cooking is used as a noun. यहाँ पर जो cooking word है वो noun की तरह से use हुआ है
और ये इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है। सेकेंड थिंग, ऐड सम कुकिंग ऑयल। यहाँ पर कुकिंग वर्ड जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, क्योंकि दैट इज़ शोइंग अस द समथिंग अबाउट द नाउन ऑयल। सो ये जो वर्ब्स दिखने वाले वर्ड हैं यहाँ पर ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लेट्स टेक द एग्जांपल विद द एडवर्ब, हीट द ऑयल टू कुक द प्रॉन्स। यहाँ पर प्रॉन्स को कुक करने के लिए हमें ऑयल को गर्म करना है, तो यहाँ पे जो टू कुक है वो एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। सो वंस अगेन, finite verb, a verb which shows time or a verb which is limited by number, person or gender of the subject is known as finite verb। ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं और साथ के साथ वो हमें टेंस के बारे में बताते हैं। जस्ट लाइक इन एग्जाम्पल, स्नेहा राइट्स लेटर्स, दे राइट लेटर्स, वी हैव रिटन लेटर्स। सो इससे हमें टेंस के बारे में पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, अ वर्ब दैट डज़ नॉट शो टाइम। इससे हमें टाइम का पता नहीं चलता है, एंड विच इज़ नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन और टेंस और सब्जेक्ट, क्योंकि जो वर्ब्स हैं वो डिपेंड करती हैं हमारे सब्जेक्ट के नंबर्स पर भी। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इसका सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। रमन ट्राइज टू सिंग, वी ट्राई टू सिंग, दे ट्राई टू सिंग। सिंग यहाँ पर है नॉन फाइनाइट वर्ब। सो आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन द फाइनाइट वर्ब एंड द नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब हमें बिल्कुल भी टेंस के बारे में नहीं बताते, जबकि हमें क्लियरली टेंस का पता चलता है और ये सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं, पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं, और साथ के साथ हमें बताते हैं कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो हमें टेंस के बारे में बिल्कुल नहीं बताते। इससे हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि जो हमें गिवन सेंटेंस है उसके अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुए हैं, पास्ट टेंस में यूज़ हुए हैं या फ्यूचर टेंस में यूज़ हुए हैं। तो इनसे हमें टेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सो आई होप this difference of finite verb and the non-finite verb is clear to you. So once again, finite verbs which is linked with the verb, which shows us the tense, and this जो नंबर है वर्ब है वो नंबर पर डिपेंड करता है। नंबर किसका? सब्जेक्ट का, क्योंकि अगर वो सिंगुलर है, प्लूरल है, उससे फ़र्क पड़ता है। बट द नॉन फाइनाइट वर्ब से हमें टेंस के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। So on your screen you can easily see that there is written the non-finite verb, और यहाँ से हमें पता चल रहा है that non-finite verbs are of the three types like infinite, gerund and participle. And this thing I'm going to explain you in my next video. So I hope you like this one and wait for the next one. Thank you so much. And please don't forget to like, share or subscribe. Bye bye for now.